Hello students, how are you? Hopefully you are studying well at your home and covering the syllabus in a good speed. Today we will start with chapter number 3rd of your syllabus, that is HTML. HTML is a language that is used to create websites or web pages. If we start with its definition, or you can say its full form, HTML stands for Hypertext Markup Language. It is made up of four terms. Hyper. Hyper means link, because in all the websites we are very much aware that we will click on some point and it will take us to some another place that's from where the word hyper is taken. Text means data. Obviously, we will be dealing or displaying some data on web page. Hypertext markup. Markup is a specific reserved word which means predefined. Predefined mean it has some specific meaning already. Means इसका कुछ एक already fixed meaning होगा, एक fixed method होगा, हम उसको वैसे ही use करेंगे. That's why it is called markup. Language itself, because we will be making it, or you can say writing it some code. So the term hypertext markup language, it may be clear to you now. Hypertext markup language was designed by Tim Berners-Lee in late 90s. It is the same person who has developed the concept of WWW, World Wide Web. He is the same person who has developed, or you can say designed the internet basics, WWW, World Wide Web, and it has also he has also developed hypertext markup language. For dealing or designing any HTML web page, we need two softwares basically. One is text editor and another one is your browser. Text editor, it will be a program, a simple program or software, not a program, but it will be a software where we will be typing the text, or you can say coding of the HTML. For this we have some common text editors in our PC. We can easily find Notepad. Notepad is in the accessories. You must have used it many times. It is a simple you can say software which you don't have to download. It is easily available, already available in the Windows. And another one is browser can be of any you can say brand, like Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Mozilla, any browser will help it in then नोटपैड में हम लोग उसको लिखेंगे HTML की कोडिंग को. If we start with the basic programming structure of any HTML program is divided into two parts. One is the header section, one is the body part. Header section basically deal with the journal information about the document. Let's take example. Suppose you are opening any website. Let's say you are opening amazon.com for online shopping or some other purpose. There is a title bar on the top of the Internet Explorer or the browser where normally some words are written. As we have taken example of Amazon, वहाँ पे लिखा आएगा ऑनलाइन शॉपिंग, समथिंग लाइक दैट. जो टॉप पे टाइटल बार पे दिखेगा वो होती है एक जनरल इंफॉर्मेशन किसी भी वेब पेज की. कई बार क्या होता है कि जब हम वेबसाइट को ओपन करने की कोशिश करते हैं तो उसमें ड्यू टू द स्लो स्पीड ऑफ द इंटरनेट वो पेज खुला नहीं होता अभी. बट बाय व्यूइंग दैट टाइटल बार हमें पता लग जाता है कि हमारी वो वेबसाइट खुल रही है, या उस वेबसाइट का नाम आना शुरू हो गया, या कोई भी एक जर्नल इंफॉर्मेशन जो हमें उस वेब पेज या वेबसाइट के बारे में कुछ बता रही है वो हमें ऊपर डिस्प्ले होती है. ऐसा कुछ पार्ट जो होगा दैट विल बी डिजाइंड इन द हेडर सेक्शन ऑफ एन HTML प्रोग्राम. उसमें टाइटल अलग से देंगे हम, हेडर सेक्शन बनेगा. उसके बाद आएगा हमारा बॉडी पार्ट. एज द नेम सजेस्ट, बॉडी बेसिकली जो भी कंटेंट हमारा किसी वेब पेज पे डिस्प्ले होना है वो सारे का सारा जो है हमारा जाएगा बॉडी सेक्शन में.
बॉडी सेक्शन में हमारे पास जितने कंटेंट हैं जो हमने डिस्प्ले करने हैं वो जाएंगे. इन एडिशन टू दैट कंटेंट डेफिनेटली वी हैव टू यूज़ सम टैग्स. जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, हमारे पास इसमें एक डेफिनेशन में फुल फॉर्म में वर्ड आया था मार्कअप. मार्कअप मीन्स हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस जिनको हम स्पेसिफिकली HTML के अंदर टैग बोलेंगे, जो ये स्पेसिफाई करेंगे कि मेरा जो कंटेंट है वो कैसा दिखेगा. आई एम रिपीटिंग माई वर्ड, वो कैसा दिखेगा. क्योंकि HTML मेरे कंटेंट की बजाय उस कंटेंट की लुक को ज़्यादा डील कर रहा है कि मेरा डाटा या मेरा टेक्स्ट या मेरी इंफॉर्मेशन उस वेब पेज पे कैसे डिस्प्ले हो रही है. दैट विल बी अंडर द बॉडी पार्ट. सो इन शॉर्ट, हमारे पास किसी भी HTML प्रोग्राम की बेसिक स्ट्रक्चर में दो पार्ट्स बनेंगे. एक पार्ट बनेगा हमारा हेडर सेक्शन, एक पार्ट बनेगा हमारा बॉडी सेक्शन. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन रिगार्ड टू योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू. एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये वाला पार्ट जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा. Now we will start with the next part of HTML, that is the tag part, that are the major portion which will be covering the syllabus part. Tags. What is a tag? Tag can be defined as the basic building blocks for designing any web page. जो भी हम लोगों ने डिज़ाइनिंग करनी है HTML प्रोग्राम की, उसके लिए जो हम कोड पोर्शन डील करेंगे, जो कोडिंग लिखेंगे, उस कोडिंग में हम लिखेंगे टैग्स. टैग्स को हम अगर देखें, आपकी बुक में आप देखोगे या आपको पहले पढ़ा होगा थोड़ा सा उसके बारे में, तो जो हमारे पास टैग्स होते हैं वो कुछ प्री डिफाइंड टेक्स्ट होते हैं जिनको हम ट्रायंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर करेंगे. ट्रायंगुलर ब्रैकेट्स मीन्स एक हमारे पास लेस देन का सिंबल आएगा, एक हमारे पास ग्रेटर देन का सिंबल आएगा. उसके इन बिटवीन दोनों सिंबल्स के बीच में हम कुछ टेक्स्ट लिखेंगे जिनका एक स्पेसिफिक मीनिंग होगा. ऐसे मीनिंग्स, ऐसे वर्ड्स जिनका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, हम उसको रिजर्व्ड वर्ड भी बोलते हैं. वो बोलेगा, वो कहलाएगा हमारे पास टैग. टैग बने हमारे पास, जो टैग्स होंगे हमारे पास, वो टैग्स बनेंगे दो कैटेगरीज में. एक कैटेगरी कहलाती है हमारे पास ओपन टैग्स, दूसरी कैटेगरी कहलाती है कंटेनर टैग्स. जो हमारे पास कंटेनर टैग होंगे, कंटेनर टैग्स आर द टैग्स विच आर हैविंग ओपनिंग टैग एज वेल एज क्लोजिंग टैग. मीन्स ये वाले टैग, इनको हम पेयर्ड टैग भी बोल देते हैं. पेयर टैग मीन्स इसमें हमारे पास एक टैग होगा जो स्टार्ट होगा, मतलब ट्रायंगल ब्रैकेट, वो एक टेक्स्ट, उसका जो भी वर्ड होगा उस टैग के रिलेटेड, वो लिखने के बाद हमने उसकी ट्रायंगल ब्रैकेट को बंद करा. उसके बाद जो हमारा नॉर्मल कंटेंट होगा जो उस टैग के रिलेटेड डिस्प्ले होगा, टैग उस पर इफेक्ट डालेगा उस टेक्स्ट पे, वो टेक्स्ट लिखा जाएगा. उसके बाद उस टैग को बंद किया जाएगा विद ए स्लैश, ट्रायंगल ब्रैकेट स्लैश, सेम वो वर्डिंग जो उस टैग का नाम है, फिर ट्रायंगल ब्रैकेट बंद. मतलब हमारे पास एक टैग स्टार्ट हुआ ट्रायंगल ब्रैकेट के बीन बिटवीन, उसके बाद हमने कंटेंट लिखे, कंटेंट लिखने के बाद फिर हमने स्लैश डालने के बाद उसको ट्रायंगल ब्रैकेट स्लैश टैग को बंद कर दिया. ये हो गया एक हमारा ओपनिंग टैग, एक हमारा क्लोजिंग टैग. क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग के बीच में हमारा कंटेंट जाएगा, क्योंकि ये पेयर में चल रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कंटेनर टैग और इट इज आल्सो कॉल्ड पेयर टैग. दूसरी कैटेगरी या दूसरी टाइप हमारे पास जो टैग्स की है, दैट आर कॉल्ड ओपन टैग्स. ओपन टैग्स मीन दीज आर आल्सो कॉल्ड सिंगल टैग्स. मीन्स इसमें हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद उसका कुछ इफेक्ट आएगा, बट ये वाले टैग स्लैश लगाने के बाद बंद नहीं होंगे. अगर मैं तीन एग्जांपल्स मेंशन करूँ, हमारे पास जो कंटेनर टैग होंगे, कंटेनर टैग में सिंपली हम लोग छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन. आपने नॉर्मली कंप्यूटर की टर्म्स में जब भी आपने वर्ड में काम किया, कहीं और काम करा, तो आपने देखा होगा बोल्ड अंडरलाइन करते हैं हम, यहाँ में इटैलिक बनाते हैं. तो उसमें ये चीज़ याद करो कि जब आपने बोल्ड करना था किसी टेक्स्ट को, तो उस टेक्स्ट को बोल्ड करने के टाइम आप लोगों ने एक स्टार्टिंग मेंशन करी. उस स्टार्टिंग मेंशन करने के बाद फिर आपने नॉर्मल अपना काम करा. वो बोल्ड इफेक्ट कहाँ तक जाएगा, आपको उसकी क्लोजिंग भी बतानी पड़ी. सिमिलरली हम बोल्ड टैग जब यूज़ करेंगे तो हमारी एक स्टार्टिंग होगी, हम टेक्स्ट लिखेंगे कोई फॉर्म में,
डाटा लिखेंगे। उसके बाद हम बोल्ड टैग को बंद कर देंगे, मीन स्टार्टिंग टेक्स्ट क्लोजिंग, ये पेयर में हुआ। उसी तरीके से जब हमने अटैलिक करना है, मतलब टेक्स्ट हमारा कुछ स्लेंटेड फॉर्म में जाएगा, तो मैंने स्टार्ट करा आई के साथ, वो हम बाद में पढ़ेंगे कि क्या क्या वर्ड्स होंगे। एक सिंपल डेफिनेशंस या एक एग्जांपल समझ लेते हैं पहले हम। स्टार्ट करा अटैलिक, उसके बाद हमने टेक्स्ट दिया जिसके ऊपर वो इफेक्ट डालेंगे, फिर हमने अटैलिक को बंद कर दिया। अंडरलाइन में भी ऐसे होगा, जब आप किसी सॉफ्टवेयर में यूज़ करते हो, मेंशन करते हो ना कि यहाँ से लेके यहाँ तक इन बिटवीन इतना टेक्स्ट मेरा अंडरलाइन कर दे, तो उसमें आपने स्टार्टिंग पॉइंट भी मेंशन करा, उसमें आपने एंडिंग पॉइंट भी मेंशन करा, वो हो गया हमारा कंटेनर टैग। उसके बाद अगर हम एम्प्टी टैग की एग्जांपल लेके चले या सिंगल टैग की एग्जांपल लेके चलें, उसमें भी एक सिंप्लीफाइड एग्जांपल लेके स्टार्ट करेंगे ताकि आपको पॉइंट क्लियर हो जाए। एंटर, हमने जब एक ब्लैंक लाइन छोड़नी है तो क्या आप स्टार्टिंग मेंशन करते हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन छोड़? नहीं, आप एंटर किया, इट मीन हमारे पास यहाँ पॉइंट हम काम कर रहे थे, पॉइंट में काम करने के बाद एक स्पेसिफिक पोजीशन पे काम करने के बाद हमने लाइन छोड़नी है, ब्लैंक एरिया छोड़ना है, मैंने एंटर की को प्रेस करा, नेक्स्ट लाइन में चला गया। जितनी बार भी मैं एंटर की प्रेस करूंगा उतनी बार वो ब्लैंक लाइन छोड़ देगा। वो ये नहीं छोड़ेगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी लाइन छोड़, इसके बाद तो लिखना शुरू कर दे, वो कुछ और कंसेप्ट है। वो पैराग्राफ में या हम बीच में ब्लैंक स्पेस छोड़ रहे हैं, वो स्पेस बार में जाएगा, वो एंटर में नहीं जाएगा। क्लियर? आई होप अब आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ डाउट्स हैं या बेसिक्स जो हैं आगे हम जब क्लियर करेंगे एग्जाम्पल्स में तब क्लियर हो जाएगा। अब हमारे पास दो तरह के टैग हो गए, कंटेनर टैग एज वेल एज एम्प्टी टैग। कंटेनर टैग में हमारे पास पेयर चलेंगे, स्टार्टिंग भी होगी, एंड होगा, एंड में जो भी हमारा टैग होगा उसका नाम वही होगा, सेम स्पेलिंग्स जाएंगे जो उसकी स्टार्टिंग में लिखे थे। सिर्फ फ़र्क इतना जाएगा कि जो एंड वाला टैग होगा, जो क्लोजिंग टैग होगा उस पेयर के अंदर, उसके आगे स्लैश लगेगा। और जो हमारे पास एम्प्टी टैग होते हैं वो स्टार्ट होते हैं, उनका इफेक्ट इम्प्लीमेंट होगा, बट उसमें हमारे पास कोई भी क्लोजिंग टैग या स्लैश लगा के हम उस टैग को रिपीट नहीं करेंगे। अप टू दिस पॉइंट अब आपको क्लियर हो गया होपफुली। डन। नाउ इफ़ वी से अबाउट द टैग्स, तो टैग्स में एक तो हमारे पास नाम आएगा, नाम आने के बाद हमारे पास हर टैग में दो चीज़ें मेंशन होंगी। एक होगा हमारे पास कोई एट्रीब्यूट और उस एट्रीब्यूट की वैल्यू। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज़ ए एट्रीब्यूट? एट्रीब्यूट क्या है? एट्रीब्यूट इन सिंपल टर्म्स वी कैन से एट्रीब्यूट इज़ ए प्रॉपर्टी। लेट्स टेक एग्जांपल। आप लोग एक टेक्स्ट लिख रहे हो, आपने वेबसाइट खोली या वेब पेज आपने डिज़ाइन करा, उसमें क्या लिखेंगे? आप कुछ डाटा लिखोगे, वो डाटा जो है वो फॉन्ट है, मटेरियल है, वो लिखेंगे। अब उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ या एट्रीब्यूट, स्पेसिफिकली अगर हम कंप्यूटर टर्म्स में बोलें, वो एट्रीब्यूट कहलाएगा। वो एट्रीब्यूट क्या होगा? सोच के देखो आप। हम उसका कुछ साइज़ चेंज करेंगे, टेक्स्ट जो है वो थोड़ा बड़ा लिखा जा रहा है या टेक्स्ट थोड़ा छोटा लिखा जा रहा है, या टेक्स्ट का कलर क्या है। लाइक नॉर्मली जो हमारा टेक्स्ट होगा वो ब्लैक कलर में हो रहा है, बट इट मे बी कि मैं उस टेक्स्ट को रेड में लिखना चाह रहा हूँ, ब्लू में लिखना चाह रहा हूँ। तो मेरे पास वो डाटा तो आया, बट उस डाटा के अंदर हमारे पास हमने उसका साइज़ भी मेंशन करा, हमने उसका कलर भी मेंशन करा। तो इन दिस कंटेक्स्ट वो साइज़, वो कलर, या हम उसका डिज़ाइन भी मेंशन कर सकते हैं। डिज़ाइन मीन्स उस लिखने का स्टाइल क्या है। हमारे पास हम कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, वो अलग अलग फॉन्ट केसेस बोल देते हैं, हम उसको फॉन्ट, नॉर्मली फॉन्ट का डिज़ाइन बोल देते हैं। तो वो फॉन्ट का जो डिज़ाइन है इन टर्म्स ऑफ HTML, वो उसको कहलाया जाएगा फेस इन HTML। हम उसके लिए, जैसे स्टार्टिंग में आपको बताया, मार्कअप, हर चीज़ का एक स्पेसिफिक नेम, एक स्पेसिफिक वर्ड होगा, हम उसको वैसे ही यूज़ करेंगे। यहाँ पे अगर मैंने टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना है तो मेरे को उसके लिए वर्ड यूज़ करना पड़ेगा फेस। तो यहाँ पे फॉन्ट लिखा मैंने, टेक्स्ट डिस्प्ले होना है, फॉन्ट हमने शुरू करा। फॉन्ट के अंदर हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज़ बेसिकली जो कॉमनली यूज़ होंगी, वो होएगा फॉन्ट का साइज़, फॉन्ट का कलर और फॉन्ट का फेस। फेस मीन्स डिज़ाइन। अब ये हो गए तीन एट्रीब्यूट्स। क्लियर? राइट? समझ आ रहा है आपको? उसके बाद फिर आया उसका वैल्यू। अब मैंने जैसे पहले अभी बोला कि जी हमने टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट का कलर हो गया, राइट? वो कलर एक प्रॉपर्टी हो गई उसकी।
बट उस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, ब्लैक है, ब्लू है, रेड है, वट एवर, वो जो हम उसको मेंशन करेंगे डैट विल बी कॉल्ड द वैल्यू ऑफ डैट एट्रीब्यूट और डैट प्रॉपर्टी। राइट, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब हम स्टार्ट करेंगे कुछ रिटन फॉर्म में, कुछ एक्सप्लेन्ड फॉर्म में। आपको आई विल शो यू द कोडिंग कि वो कोडिंग्स कैसे होंगी। लेट्स स्टार्ट विद द कोडिंग नाउ। यहाँ तक हम देख ही चुके हैं ऑलरेडी कि हमारे पास आया HTML, इट स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दो तरह के टैग आ गए हमारे पास, टाइप्स आ गई बेसिकली, कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग। इसमें हमारे पास जैसे मैंने बोला था बोल्ड, तो हम उसको कैसे करेंगे, हमारे पास बोल्ड में हमने बी से हमारा स्टार्ट हुआ, उसमें मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा अपना, वो फैक्ट बंद होगा ऐसे। मीन्स मेरे पास टैग शुरू हुआ, ट्रायंगल ब्रैकेट से स्टार्ट होगा, उसके स्पेसिफिकली कुछ वर्ड्स होंगे। यहाँ पे मैंने बोल्ड की एग्जांपल ली, तो उसके लिए हम बी लिखेंगे, ट्रायंगल ब्रैकेट बंद करा, ये मेरा स्टार्ट एक टैग हो गया इट यहाँ तक। उसके बाद वो इफेक्ट डालने के लिए जो उसका डाटा होगा, जो उसका टेक्स्ट होगा, वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे उसको बंद कर दिया। नाम वही रहेगा टैग का, स्पेसिफिकली जो यहाँ लिखा जा रहा है, जो नाम वही बंद होगा। ओनली डिफरेंस बिटवीन द क्लोजिंग, ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग है, क्लोजिंग में और ओपनिंग में इतना फ़र्क होगा कि जो क्लोजिंग होगी उसके आगे हमारे पास एक स्लैश लगेगी, राइट। और जो हमारे पास एम्प्टी टैग्स जाएंगे, एम्प्टी टैग में हमारे पास सिर्फ स्टार्टिंग का टैग होगा, उसका कुछ इफेक्ट आएगा, बट उसमें हमारे पास यहाँ पे क्लोजिंग नहीं होगी। इसकी अगर मैं एग्जांपल लूँ, मैंने आपको अभी डिटेल में जब बता रहा था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें मैंने बोला था एंटर की। तो एंटर की में हमने मतलब एंटर करना है, एक न्यू लाइन इंसर्ट करनी है, तो उसके लिए स्पेसिफिकली हमारे पास एक टैग जाता है ब्रेक, BR। तो ये वाला टैग जब यूज़ होगा तो हमारे पास एक न्यू ब्लैंक लाइन इंसर्ट हो जाएगी। बट यहाँ पे यू कैन वेरी वेल इमेजिन और जज योर सेल्फ कि यहाँ पे हमें उसके लिए कोई क्लोजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने मेंशन कर दिया कि भाई एक ब्लैंक लाइन इंसर्ट कर दे, तो वो उसमें एक ब्लैंक लाइन इंसर्ट कर देगा, मेरे को वहाँ पे उसकी क्लोजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर मैंने 3 ब्लैंक लाइन्स इंसर्ट करनी है तो व्हाट आई विल डू, मैं 3 बार वहाँ पे BR लिख दूंगा, इससे एक लाइन इंसर्ट हो गई। ये आया, इसको जब उसने एग्जीक्यूट करा दूसरी लाइन इंसर्ट हो गई, ये एग्जीक्यूट करा तो तीसरी लाइन इंसर्ट होगी। मेरे को यहाँ पे क्लोजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक और पॉइंट याद करवाना चाहूँगा मैं आपको कि HTML जो है, HTML इज़ नॉट ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब कि हमारे पास अगर हम कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, डैट कैन बी इन अपर केस एज वेल एज इन लोअर केस, मतलब वो छोटी ABC में भी हो सकता है लिखने की फॉर्म में, या वो बड़ी ABC में भी लिखा जा सकता है। इट डज़ नॉट मेक ए डिफरेंस इफ़ वी राइट इट इन स्मॉल ABC और इफ़ इट इज़ रिटन इन द कैपिटल ABC फॉर द HTML। इन सम अदर लैंग्वेजेस जो हम पढ़ेंगे सिलेबस में आगे आएंगी, वो केस सेंसिटिव हो सकती हैं, बट हमारे पास जो HTML है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। नाउ कमिंग टू योर टैग पार्ट, जो हमने स्टार्ट करना था, टैग पार्ट में हमारे पास कुछ टैग्स आएंगे। एज़ पर आवर सिलेबस वी विल कंटिन्यू टू कवर द टैग्स जैसे जैसे वो आपके सिलेबस में चैप्टर में आ रहे हैं। सबसे पहले टैग आएगा हमारे पास हेडिंग टैग। अगर हम हेडिंग टैग की बात करें तो जब आप हेडिंग वर्ड पढ़ रहे हो तो आपके माइंड में क्या आ रहा है कि हेडिंग क्या होगी। हेडिंग का मतलब हमारे पास क्या हुआ कि हमने कोई टेक्स्ट लिखा, कुछ चीज़ लिखी, हमने उसको हाईलाइटेड फॉर्म में, एक हेडिंग फॉर्म में दिखाना है। जैसे आप न्यूज़पेपर में हेडिंग देखते हो, न्यूज़ आ रही है, उसमें न्यूज़ लिखा हुआ है, बट उसका जो एक मेन पार्ट होगा या उसका जो टाइटल होगा वो बड़ा करके दिख रहा है आपको, उसको हम बोलेंगे हेडिंग। तो सिमिलरली जब हमने टेक्स्ट फॉर्म में, हमारे पास एक कोई भी एक वेब पेज बना, उस वेब पेज में मैंने कुछ यहाँ पे लिखा, उसकी डिटेल नीचे लिख रहा हूँ मैं, तो मेरे को ये वाला जो पोर्शन है वो हाईलाइटेड फॉर्म में चाहिए, नॉट हाईलाइटेड फॉर्म, बट वो मेरे को बाकी टेक्स्ट से बड़ा चाहिए, हेडिंग फॉर्म में चाहिए। तो उसके लिए मेरे पास कुछ टैग्स बनेंगे। वो टैग्स के हमारे पास 6 वेरिएशंस हैं, H1 से लेके H6 तक। वो कैसे जाएगा हमारे पास, वी विल राइट H1, H2, H3, H4, then we have H5 and H6।
H1, H2, H3, H4, H5, H6। जो लार्जेस्ट साइज़ होगा वो हमारे पास H1 का जाएगा, जो स्मॉलेस्ट साइज़ होगा वो H6 का जाएगा। सपोज़ आई वांट टू राइट ए टर्म कंप्यूटर, राइट। अब मैंने ये वाला टेक्स्ट दिखाना है वहाँ पे, तो अगर मैं इसको बड़ी फॉर्म में दिखाना चाह रहा हूँ तो व्हाट आई विल सिंपली राइट H1 स्टार्ट करा, उसके बाद जो मेरा टेक्स्ट लिखना है उसको एज सच लिखा, और यहाँ पे मैंने उस टेक्स्ट टैग को बंद कर दिया, राइट। तो उसने जब उसको वो प्रोसेसर देखेगा तो उसको लगेगा यहाँ से, जब उसको वो एग्जीक्यूट करेगा कि H1 टैग आया जी, कि मेरे को अब ये हेडिंग फॉर्म में दिखाना है, ठीक है, स्टार्ट हो गया इफेक्ट, यहाँ से टेक्स्ट मेरे को मिल गया कि ये वाला दिखाना है। जब तक वो बंद नहीं हो रहा वो उस इफेक्ट को कंटिन्यू रखेगा। यहाँ पे इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमारे पास वो वाला जो टैग है वो उसी लाइन में बंद होना चाहिए। नो, इट मे बी कि मैं यहाँ पे 12 लाइंस लिख रहा हूँ, 10 लाइनें लिख रहा हूँ, 5 लाइनें लिख रहा हूँ, जितनी भी लाइंस लिखी मेरे को सेम इफेक्ट चाहिए। जहाँ इफेक्ट को बंद करना है वहाँ पे जाके मैं उस टैग को बंद कर दूंगा। इन बिटवीन जब तक मैं उसको स्टार्ट करके बंद नहीं कर रहा वो इफेक्ट मेरा चलता रहेगा। इट डज़ नॉट मीन कि मेरे को हर लाइन में एंड में लिखना पड़ेगा या स्टार्टिंग में दोबारा से लिखूँ। इफेक्ट स्टार्ट करा, इट कैन कवर 1 लाइन, 2 लाइन, 10 लाइन्स, 2 पेजेस, वट एवर, जितनी भी मेरे को, जब तक मेरा टेक्स्ट चल रहा है, डाटा चल रहा है, यहाँ पे मैं बंद करूँगा वो हो जाएगा। इसी तरीके से H2, H3, H4, H5, H6। H6 का साइज़ जो है वो सबसे छोटा लिखा जाएगा, और जो H1 का साइज़ होगा हेडिंग में वो सबसे बड़ा जाएगा, मतलब टेक्स्ट का जो फॉर्म होगा वो बड़ी लिखी जाएगी। फिर हमारे पास आया दूसरा टैग, पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग का जो सिंबल होगा या टेक्स्ट होगा वो लिखा जाएगा P। जैसे हम कोई भी टैग पैराग्राफ पढ़ते हैं बुक में तो आपने देखा होगा कि पैराग्राफ फॉर्म में हमारे पास यहाँ से लाइन लिखनी शुरू हुई, यहाँ गई, यहाँ पे 2, 4, 5 वर्ड्स आ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, वो यहाँ से बराबर हो जाता है, यहाँ से बराबर हो जाता है, कुछ इस तरीके से लिखा जा रहा है। अगर मेरे को ये वाला इफेक्ट चाहिए अपने, तो मैं उसके लिए पैराग्राफ टैग को यूज़ करूँगा, P टैग को यूज़ करूँगा। लिखेंगे कैसे हम? P, उसके बाद मेरा कोई भी टेक्स्ट जो लिखना है वो लिखा, उसके बाद जब मेरा वो टेक्स्ट ख़त्म हो गया मैंने उस P को स्लैश लगा के बंद कर दिया। इन बिटवीन मेरे पास वो सारा इफेक्ट पैराग्राफ फॉर्म का आ जाएगा। बट यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर एक एट्रीब्यूट सेट होगा। एट्रीब्यूट हमारे पास एक आता है अलाइन। आप लोगों ने अलाइन वर्ड सुना होगा, इन कंप्यूटर्स वी यूज़ दिस वर्ड वेरी ऑफन। अलाइनमेंट उसकी सेटिंग। अब जब हम टेक्स्ट लिखते हैं तो आपने कई बार देखा होगा कि हमारी बुक, जब हम नॉर्मली मैं लिख रहा हूँ या आप अपनी कॉपी में लिखते हो, तो हम लोगों की जो कॉपी की फॉर्म है वो कुछ ऐसी होगी। तो हम लिखना शुरू करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से हमारी इस तरफ से बराबर होती है, यहाँ से कोई लाइन पीछे जा रही है, कोई आगे जा रही है, वट एवर। तो ये हमारी अलाइनमेंट हो गई लेफ़्ट वाली, क्योंकि मेरा लेफ़्ट से बराबर जा रहा है। बट कई बार क्या होता है हमारा, चलो हिंदी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं होता, बट इफ़ वी टेक ए सिंपल एग्जांपल ऑफ एनी लैंग्वेज, सपोज उर्दू, तो वो इधर से लिखी स्टार्ट होती है। तो उसमें क्या होगा कि वो ऐसे करेगा, लिखना इधर से शुरू करेगा, ठीक है जी। इट कैन गो लाइक दिस। तो मेरे पास ये इधर से राइट साइड से बराबर होगा। नॉर्मली हमारे पास जो लिखने वाला होता है वो लेफ़्ट से होगा, वो राइट से हो सकता है, वो हो सकता है दोनों तरफ से हो। आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली जब हम बुक में प्रिंट देखते हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि जब हम टाइप करें हम नंबर ऑफ़ वर्ड्स काउंट करके लिखें कि हर लाइन में मेरे वर्ड्स बराबर होंगे। बट हम जो बुक में पैराग्राफ देखते हैं वो हमेशा कुछ ऐसा होगा कि उसकी जो लिखने की फॉर्म होगी वो इस तरफ से और इस तरफ से, जब दोनों तरफ से बराबर होती, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हर में इक्वल नंबर ऑफ़ वर्ड्स हों। तो उस अलाइनमेंट को हम बोलेंगे जस्टिफाई। तो हमारे पास इसमें एक पैराग्राफ के अंदर हम उसको एट्रीब्यूट को कैसे मेंशन करेंगे? P। यहाँ पे हम उसका एट्रीब्यूट मेंशन करेंगे अलाइन। हमने लिखा अलाइन इज़ इक्वल टू, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम उसकी वैल्यू दे सकते हैं लेफ़्ट, हम उसकी वैल्यू दे सकते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लेफ़्ट, वी कैन राइट राइट, देन वी हैव जस्टिफाई, एंड वी कैन आल्सो मेंशन एज सेंटर। तो सेंटर में क्या होगा कि वो उस पेज के, सपोज दिस इज़ ए पेज, तो मैं जितनी भी लाइन लिख रहा हूँ उनका सेंटर सेम रहेगा, ठीक है। लेफ़्ट और राइट से बराबर हो ना हो, उनका सेंटर में सेम रहेगा। तो हमारे पास कौन कौन से 4 एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ बन गई। ये हो गया पैराग्राफ टैग, उसका एट्रीब्यूट हो गया अलाइन,
उसकी वैल्यू हो गई जो हम मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे उसको हम बंद करेंगे, फिर हम टेक्स्ट को लिखेंगे। जब हम प्रॉपर्टीज़ में मेंशन कर दिया हमने कि उसके ये वाले एट्रीब्यूट्स हैं, मेंशन कर दिया, तो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, नॉट नेसेसरी कि जब हम उसको बंद करेंगे हम उसके अकेले अकेले एट्रीब्यूट को बंद करेंगे। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू क्लोज ऑल, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू क्लोज एनी एट्रीब्यूट। सिर्फ हमने जो टैग स्टार्ट करा था उसी के नाम को बंद करना है। जब वो बंद हो गया उसके अंदर हमने एक एट्रीब्यूट सेट करा, 2 करे, 4 करे, जितने भी सेट किए होंगे वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। नॉट नेसेसरी टू स्पेसिफिकली क्लोज एनी एट्रीब्यूट, सिर्फ हम टैग को बंद करेंगे। तो यहाँ पे पैराग्राफ टैग में हमारे पास हमने एक एट्रीब्यूट पढ़ा अलाइन। अलाइन के अंदर हमने उसकी वैल्यूज़ पढ़ ली, लेफ़्ट जा सकता है, राइट जा सकता है, जस्टिफाई जा सकता है या सेंटर जा सकता है। ये हो गए 4 हमारे पास एट्रीब्यूट्स पैराग्राफ टैग के। फिर हमारे पास एक और टैग आया, दैट टैग इज़ कॉल्ड सेंटर टैग। ठीक है जी, सेंटर टैग। अभी हम यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि हमने ऊपर भी एक एट्रीब्यूट पढ़ा सेंटर, वैल्यू पढ़ी, सॉरी, अलाइनमेंट की। अलाइन जो हमारा प्रॉपर्टी है पैराग्राफ टैग का, एक एट्रीब्यूट है अलाइन, उसके अंदर उसकी 4 वैल्यूज़ जा सकती हैं, उसमें से एक वैल्यू है सेंटर। तो ये पैराग्राफ के टेक्स्ट को सेंटर ऑफ द लाइन में लिखेगा। बट ज़रूरी नहीं कि हमने कोई भी जो टेक्स्ट लिखना है वो हमेशा पैराग्राफ फॉर्म में हो। वो हो सकता है एक सिंगल लाइन ही है। मेरे पास पेज आया, सपोज दिस इज़ ए पेज, मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखना है। मैं टेक्स्ट चाह रहा हूँ कि सपोज मैंने लिखा डाटा, वो पेज के सेंटर में लिखना है मैंने, तो व्हाट आई विल यूज़, मेरे को पेज के सेंटर में लिखने के लिए व्हाट आई विल डू इन HTML कोडिंग, मैं सिंपली लिखूँगा यहाँ पे कोडिंग के अंदर सेंटर। उसके बाद मैंने अगर डाटा वर्ड लिखना है तो फिर मैंने लिखा डाटा, उसके बाद मैंने सेंटर को क्लोज़ कर दिया। तो इस टैग से लेके इस टैग के इन बिटवीन जो भी मेरा लिखा जाएगा वो पेज की सेंटरिंग में, सपोज दिस इज़ ए पेज, तो उसका जो सेंटर होगा वो कैलकुलेट करने के बाद वो उसको इस तरीके से लिखेगा कि वो पेज के सेंटर में है। तो ये वाला टैग हो गया हमारे पास सेंटर टैग। नेक्स्ट टैग जाता है हमारे पास कमेंट टैग। आपने कमेंट वर्ड यूज़ करा कभी? या बुक में एक एग्जांपल लेके चलते हैं कमेंट को समझाने के लिए। मैनी ऑफ टाइम्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, क्या हर स्टूडेंट, जब आप अपनी बुक में बेटा कुछ लिखेंगे तो व्हाट यू डू एट दैट टाइम, कि आप जब अपनी बुक में पढ़ रहे हो तो बुक के पढ़ते पढ़ते ना आप अपनी साइड में, बुक की साइड पे अपने वर्ड्स में या अपनी लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में या जो भी आपको समझ आए उसमें कुछ ईजी वर्ड्स लिख लेते हो आप। वो वाले वर्ड्स जो हैं वो आपकी बुक पे आपको दिख रहे हैं, बट जब आप वो चीज़ें, वो डाटा या वो क्वेश्चन जब आप अपने पेपर में अटैम्प्ट करोगे तो वो चीज़ आप अपने आंसर शीट पे नहीं लिख के आते, राइट। वो आपकी हेल्प के लिए होता है। सिमिलरली जब मैंने ये वाली जो कोडिंग लिखनी है, ये सारी कोडिंग जब मैं नोटपैड के अंदर काम करूँगा तो वहाँ पे कई बार क्या होता है कि मैंने अपनी हेल्प के लिए कुछ नोट्स लिखने हैं बेसिकली। ठीक है जी, जो नोट्स वो उस प्रोग्रामर के लिए जो लिख रहा है, अगर मैं लिख रहा हूँ या कोई और लिख रहा है, लेट्स टेक एग्जांपल कि मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ, HTML की वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ। उस वेबसाइट पे काम करते हुए मैंने कुछ लिखा, मैंने अपनी हेल्प के लिए नहीं लिखा कुछ भी, मेरे को कि मैं बना रहा था, मुझे पता है मैं क्या काम कर रहा हूँ। बट इन मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग इंडस्ट्रीज़ जब काम होगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि एक बंदा एक चीज़ पे ही काम करेगा। हो सकता है आफ्टर सम डेज़ उसकी जगह पे कोई और काम कर रहा है, जो पहले वाला प्रोग्रामर था उसको कुछ नया प्रोजेक्ट दे दिया। तो इन डैट केस जो नया बंदा आएगा उसके लिए तो वो सारी चीज़ें नहीं हो गई, पढ़ा होगा उसने, किया होगा, बट प्रोग्रामर जो पहला कर रहा था वो अपने कुछ हिंट्स या कुछ वर्ड्स लिख के जाएगा जो नेक्स्ट प्रोग्रामर को उस HTML वेबसाइट को कंटिन्यू करने के लिए, चेंज करने के लिए हेल्प करेंगे। वहाँ पे हमारे पास कमेंट सेक्शन आता है। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाइड वर्ड में लिखूँ तो हमने नोटपैड में जो कुछ भी लिखा, हम नोटपैड में जो कुछ भी लिखेंगे, नोटपैड में 2 तरीके का डाटा जाएगा बेटा हमारे पास। एक तो जाएगा हमारे पास नोटपैड में टैग, या नोटपैड में हमारे पास जाएगा डाटा या कंटेंट। मतलब जो मैं कर रहा हूँ, जो दिखेगा वो कंटेंट होगा, जो दिखने पे इफेक्ट डालेगा वो टैग होगा। मतलब जब हम उसमें नोटपैड में कुछ भी लिखेंगे, हमारे एडिटर में लिखेंगे, तो या वो टैग होगा या वो कंटेंट होगा। बट कई बार क्या होता है कि हमने कुछ ऐसा डाटा लिखना है, वहाँ पे लिखेंगे हम उसको डाटा नहीं बोलेंगे, हम वहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, ना तो वो टैग है ना वो कंटेंट है। कंटेंट मतलब मैं नहीं चाह रहा कि वो पेज पे दिखे, मैं नहीं चाह रहा वो पेज पे दिखने में फ़र्क डाले इन द फॉर्म ऑफ ए टैग।
तो हम उसको कमेंट में डाल देंगे। कमेंट में डालने से क्या होगा कि वो हमारे नोटपैड पे तो विजिबल होगा बट वो वेबसाइट पे नहीं दिखेगा। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि वो मेरे को, जैसे हमने कॉपी की बुक की एग्जांपल ली कि आप बुक पे साइड पे कुछ लिख देते हो, राइट। आपने लिखा हुआ है आपकी बुक पे, आपको दिख रहा है एज ए प्रोग्रामर, एज ए रीडर ऑफ दैट पेज एट दैट बुक, आपको वो दिख रहा है। बट जब आप पेपर पे उसको अटैम्प्ट करके आ रहे हो तो वो वहाँ पे नहीं दिख रहा। तो सिमिलरली मेरे पास कमेंट सेक्शन जाएगा। कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, हमारे पास इसके दो सिंटैक्स जाएंगे कमेंट में। जब भी हम करेंगे कमेंट में, हम लिखने टाइम क्या करेंगे कि हमारे पास दो इसके फॉर्मेट जाएगा लिखने के लिए। एक तो जाता है सीधा, हम लिखेंगे कमेंट COMMENT, ठीक है जी। हमारे पास कमेंट सेक्शन गया, COMMENT लिखा हमने, ठीक है जी। इसको बंद करा, इसके बाद हमने कुछ भी लिखा, उसके बाद हमने कमेंट को बंद कर दिया। तो इससे क्या होगा, ये स्टार्ट हुआ टैग, ये टैग बंद हुआ। इन बिटवीन जो भी मैंने लिखा वो सिर्फ नोटपैड पे दिखेगा, विजिबल होगा। बट जब उसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाएगा, वो ये जो भी डाटा इन दो टैग्स ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में जाएगा, वो मेरे इंटरनेट एक्सप्लोरर पे या किसी और ब्राउज़र पे डिस्प्ले नहीं होगा। सो इसका पर्पस क्या होगा कि मैंने सपोज जैसे अभी स्टार्टिंग में एग्जांपल लेके आपको समझाया था कि मेरे पास जो प्रोग्रामर है वो जो काम कर रहा है, वो नेक्स्ट प्रोग्रामर की हेल्प के लिए या अपने याद रखने के लिए वहाँ पे कमेंट सेक्शन में कुछ डाल देगा जो नोटपैड पे दिखता रहेगा। जब भी मैं प्रोग्रामर सेम है या कोई नया आएगा वो खोलेगा तो उसको वो चीज़ दिखेगी हेल्प के लिए कि हमने इस प्रोग्राम में ये करा था, इस डेट को हमने ये चेंज करा था, विद द इंस्ट्रक्शंस ऑफ दिस पर्सन हमने उसमें चेंजेस करे, जो भी डाटा था। बट वो चीज़ हमने फाइनल वेब पेज पे नहीं दिखानी, तो वो यहाँ पे लिखी रहेगी। चाहे वो हमने उसमें लिखा कि मेरे बॉस ने ये इंस्ट्रक्शन दी थी, मैंने ये करा, या ये चेंजेस हुए थे ड्यू टू दिस ऑन दिस डेट हमने ये चेंज करा, बट वो दिखेगा नहीं इन द फाइनल वेब पेज। तो इस तरीके से हम कमेंट सेक्शन में डाटा डाल देंगे जिससे वो दिखेगा नोटपैड पे, बट ना वो कंटेंट की तरह ना वो टैग की तरह ट्रीट किया जाएगा फॉर द फाइनल वेब पेज डिस्प्ले। ठीक है जी, अब यहाँ तक आपका क्लियर हो गया, आपको हेडिंग क्लियर हो गई, फिर आपको पैराग्राफ क्लियर हो गया, फिर आपको सेंटर टैग क्लियर हुआ, फिर आपको कमेंट टैग क्लियर हुआ। अब अगर हम दूसरे पार्ट में जाएं, उसके बाद हमारे पास जो कॉमन टैग्स जाएंगे, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। ये मैंने आपको पहले अभी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन में ऑलरेडी समझा दिया था कि हमने बी से शुरू करा, उसके बाद हमने कुछ डाटा लिखा, उसके बाद बी को हमने बंद कर दिया। तो इससे स्टार्टिंग में करी हमने, ये जाएगा हमारा ट्रायंगल ब्रैकेट शुरू होगी, ट्रायंगल ब्रैकेट बंद होगी, यहाँ पे हम कुछ लिखेंगे। उसके बाद जब हमने उसकी क्लोजिंग करनी है तो हम ट्रायंगल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, स्लैश जाएगा और ट्रायंगल ब्रैकेट बंद होगी। यहाँ पे सेम जाएगा जो यहाँ पे लिखा होगा। ये पेयर में चलते हैं, कंटेनर टैग की एग्जांपल है। बोल्ड के लिए हमने यहाँ पे लिखा बी, यहाँ पे अंडरलाइन नहीं करना, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए किया मैंने। उसके बाद बी को हमने बंद कर दिया, इन बिटवीन जो भी लिखा जाएगा वो बोल्ड में चला गया। उसी तरीके से हमारे पास इटैलिक के लिए आई यूज़ होता है, हम आई शुरू करेंगे, हम टेक्स्ट लिखेंगे, उसके बाद हम आई को बंद कर देंगे। उसी तरीके से अगर हमने अंडरलाइन करना है, हम यू को शुरू करेंगे, हम टेक्स्ट लिखेंगे, उसके बाद वी विल क्लोज इट एज दिस थिंग। तो ये जो डाटा होगा वो 1 लाइन का हो, 4 लाइन का हो, 14 लाइन्स का हो, वट एवर द लेंथ ऑफ द टेक्स्ट इज़ देयर, वो अंडरलाइंड फॉर्म में दिखेगा, वो इटैलिक फॉर्म में दिखेगा या बोल्ड फॉर्म में दिखेगा। यहाँ पे ये याद रखना कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम एक टैग को ही यूज़ करें। एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ हमने लिखना शुरू करा क्लास 10th, राइट। अब मैंने लिखा यहाँ पे क्लास 10th, राइट। इतना दिखाना है, बट जब मैं दिखा रहा हूँ तो ये मेरे को सारा जो है वो अंडरलाइंड फॉर्म में चाहिए, राइट। बट सिर्फ जो क्लास वर्ड है वो मेरे को बोल्ड में चाहिए, 10th वर्ड जो है बोल्ड फॉर्म में नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम लिखेंगे, बोल्ड फॉर्म में चाहिए, हमने बी शुरू करा, राइट। अंडरलाइन भी स्टार्टिंग कर ली, यहाँ से हमने यू लिख दिया, राइट। उसके बाद हमारे पास वर्ड आया क्लास 10th, तो मैंने यहाँ पे लिखा क्लास, राइट। अब ये क्लास मेरे को अंडरलाइंड चाहिए था, ये भी बोल्ड में चाहिए, ये भी बोल्ड में चाहिए, बट जो अंडरलाइंड इफेक्ट है वो सिर्फ मेरे को यहाँ तक चाहिए। मैंने बोल्ड भी शुरू कर लिया, अंडरलाइन भी शुरू कर लिया, क्लास लिख लिया, वर्ड हमारा डाटा आ गया यहाँ पे। इसके बाद मेरे को अंडरलाइन इफेक्ट नहीं चाहिए, नो इश्यूज़, मैं अंडरलाइन को यहाँ पे बंद कर दूँगा,
राइट। इस फॉर्म में मैंने इसको बंद कर दिया। यहाँ पे बंद करने के बाद फिर हमारे पास बोल्ड इफेक्ट चल रहा है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 10th, राइट। यहाँ पे मैंने इस बोल्ड को बंद कर दिया। तो इससे क्या होगा, क्लास 10th वर्ड लिखा जाएगा, बट अंडरलाइन वर्ड यहाँ से शुरू हुआ टैग, यहाँ से बंद हुआ। इस दोनों टैग की स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच में सिर्फ क्लास वर्ड आया, तो वो सिर्फ क्लास को अंडरलाइन करेगा, उसके बाद वो इफेक्ट बंद हो गया। बट बोल्ड मेरा यहाँ शुरू हुआ था, यहाँ बंद हुआ है, उसके अंदर मेरे पास क्लास वर्ड भी आ रहा है और 10th वर्ड भी आ रहा है, वो दोनों वर्ड्स को बोल्ड फॉर्म में ही लिखेगा, राइट। इन दिस वे हमने इटैलिक करना है, बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है, वो सारा इफेक्ट उसमें चला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आया हमारे पास सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। यहाँ पे हम एक सिंप्लीफाइड एग्जांपल से शुरू करेंगे। हम लोग नॉर्मल कुछ टर्म्स लिखते हैं। हमने लिखा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy, राइट। हमने कुछ ऐसा डाटा लिखना है ऑन योर वेब पेज। तो यहाँ पे हमने लिखते टाइम तो 2 को ऊपर करके लिख दिया, बट जब हम नोट पैड में टाइप करेंगे वो ऐसे जाएगा। हम वहाँ पे टाइप करेंगे x2 प्लस y2 प्लस 2xy। भाई ये कहाँ गया, ये मेरे को दोनों जो टेक्स्ट थे वो ऊपर की तरफ चाहिए मेरे को यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 टैग यूज़ होंगे, सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट में डाटा जो है वो ऊपर की तरफ जाता है, जो सबस्क्रिप्ट होता है उसमें डाटा नीचे की तरफ जाता है। नीचे की अगर हम एग्जांपल लिखना चाहें H2O, अब ये जो है ऐसे नहीं लिखा मैंने लिखा H2O। ये जो वाला टेक्स्ट है वो नीचे जा रहा है, ये वाला टेक्स्ट मेरा ऊपर जा रहा है। अगर मैंने टेक्स्ट को ऊपर की तरफ लिखना है तो वो सुपरस्क्रिप्ट में जाएगा, अगर मैंने टेक्स्ट को नीचे की तरफ लिखना है तो वो सबस्क्रिप्ट में जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है कि सबस्क्रिप्ट कौन सा है और सुपरस्क्रिप्ट कौन सा है। हम इसको वैसे ही नॉर्मली याद रखने के लिए वी कैन से सुपर मतलब ऊपर, तो यहाँ आपको याद रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो जो सुपरस्क्रिप्ट होगा वो सुपर ऊपर, तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, और जो सबस्क्रिप्ट होगा नॉर्मली वो उससे उल्टा हो गया, वो नीचे की तरफ जाएगा। तो जब अगर हमने सुपर में कुछ लिखना है तो हम लिखेंगे SUP, ट्रायंगल ब्रैकेट को बंद करा, यहाँ पे हमारा टेक्स्ट आया, उसके बाद हमने सुपर को बंद कर दिया। अगर मैं ये वाली एग्जांपल को लेके चलूँ, हमने लिखा x, राइट, ये 2 ऊपर जाना है, तो आई विल राइट SUP, यहाँ बंद किया हमने इसको। उसके बाद बंद नहीं करा, ट्रायंगल ब्रैकेट को बंद करा, हमने वो वर्ड लिखा जो हमने ऊपर की तरफ करना है। यहाँ पे इफेक्ट मेरा बंद होना चाहिए, मैंने SUP को बंद करा, फिर मैंने यहाँ पे प्लस का सिंबल डाला, वो किसी टैग में नहीं है, वो ऐसा नॉर्मल लाइन में लिखा जाएगा। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे y लिख दिया, फिर ये 2 जो ऊपर जाना था इसको ऊपर लिखने के लिए फिर मैंने लिखा SUP, ठीक है जी। उसके बाद मेरे पास आ गया 2, ये ऊपर जाएगा, इसको बंद कर दिया SUP। देन आफ्टर दैट वी आर डन विद दिस थिंग एंड वी विल कंटिन्यू विद द सेम टेक्स्ट प्लस 2xy, सिंपल टेक्स्ट फॉर्म में जाएगा। तो इन दिस वे इट विल बी डन। इफ़ वी वांट टू शो इट इन द लोअर साइड, दैट इज़ कॉल्ड सबस्क्रिप्ट। इन दैट केस वी विल राइट H, आफ्टर दैट वी विल राइट SUP। जो है सुपर में SUP जाएगा, सब में SUB जाएगा, SUB। उसके बाद हमने लिखा 2, फिर उसके बाद हमने SUB को बंद कर दिया, फिर हमने लिख दिया O। तो जब ये वाली चीज़ कंटिन्यू होगी तो वहाँ पे लिखा जाएगा इस तरीके से, हमारे पास इस तरीके से इफेक्ट आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। फिर हमारे पास आया BR टैग। BR टैग इज़ फॉर ब्रेक। मैंने ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एंटर की जब हम करना चाहते हैं, ब्लैंक लाइन इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो हम BR टैग को यूज़ करेंगे, बट इसकी क्लोजिंग नहीं होती। वेयर एवर आई एम राइटिंग ए टेक्स्ट, ठीक है जी। अब नॉर्मली कई बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि हम जब नॉर्मली टेक्स्ट फॉर्म में टाइप कर रहे हैं कहीं पे, हमने ब्लैंक लाइन एंटर कर दी, 2 चाहिए 4 चाहिए, हमने उतनी ब्लैंक लाइन एंटर कर दी, एंटर की उतनी बार प्रेस कर दिया, उसके बाद हम नया टेक्स्ट लिख देंगे। बट इन केस ऑफ HTML क्या होगा कि इट विल रिमूव द एक्स्ट्रा ब्लैंक स्पेसिस। उसको पता है कि हमने एक लाइन यहाँ लिखी है, उसके बाद मैंने 4 लाइनें ब्लैंक छोड़ने के बाद लिखना शुरू करा, इट विल ट्रीट इट एज ए टाइपिंग मिस्टेक। वो वहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस छोड़ने के बाद बाकी टेक्स्ट को ऊपर कर देगा, तो इन दिस केस वो दिक्कत हो सकती है। तो हमें जितनी ब्लैंक स्टाइल लाइन चाहिए वहाँ पे हम उतनी बार ब्रेक
BR वर्ड को यूज़ करेंगे। जितनी बार BR आएगा उतनी बार ब्लैंक लाइंस इंसर्ट हो जाएंगी। सिंपली इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, सिंपल टेक्स्ट आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे ब्लैंक लाइन चाहिए, मैंने BR लिखा, यहाँ पे एक नहीं दो चाहिए, मैंने दूसरी बार भी BR डाल दिया, टेक्स्ट लिखा। तो ये जब इसको इम्प्लीमेंट करेगा एक टेक्स्ट ऊपर लिखा जाएगा, यहाँ पे ब्लैंक लाइन छोड़ेगा, यहाँ पे ब्लैंक लाइन छोड़ेगा क्योंकि मैंने 2 बार लिखा, नेक्स्ट टेक्स्ट नीचे की तरफ आ जाएगा। फिर हमारे पास आया फॉन्ट टैग। फॉन्ट टैग वो हम लिखेंगे FONT। ठीक है जी, इसका नाम से पता लग रहा है कि वी आर डीलिंग विद द फॉन्ट, बेसिकली लुक ऑफ द टेक्स्ट। तो हम इसमें फॉन्ट को शुरू करेंगे, फॉन्ट को बंद करेंगे, बट इसमें हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। उन एट्रीब्यूट्स को वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द थ्योरेटिकल पार्ट। हमारे पास एक वर्ड जाता है साइज, अनदर वर्ड फॉर इट इज़ फेस, एंड अनदर एट्रीब्यूट डेट इज़ कलर। तो यहाँ पे इतना ध्यान रखेंगे, COLOR आता है, नॉर्मली हम इंग्लिश में लिखते हैं COLOUR, बट इन केस ऑफ HTML इट इज़ ए मार्कअप। मैंने पहले बताया आपको इट हैज़ सम रिजर्व्ड वर्ड, हमें उसी फॉर्म में यूज़ करना पड़ेगा। तो इट इज़ COLOR, इसको हम इसी तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर मैंने मेंशन करना है, आई विल राइट इट एज फॉन्ट, ट्रायंगल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, बट जब कोई भी एट्रीब्यूट लिखना है वो ट्रायंगल ब्रैकेट बंद होने से पहले अंदर मेंशन किया जाएगा। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया साइज़ फॉर HTML। हमारे पास वी हैव सम स्पेसिफिक साइजेस, द मिनिमम साइज इज़ 3 एंड मैक्सिमम अवेलेबल इज़ 7। लेट्स से वी विल राइट इट एज 4। I want to display the text in the size of 4. We will try it in the practical part, वो clear हो जाएगा। then we can you can see there कि हमें कौन सा साइज़ स्पेसिफिकली चाहिए। We can try and find it out. Size mention करा, then after that we have face. Face mean design, लिखने का डिज़ाइन कैसा है। देयर आर लाइक टाइम्स न्यू रोमन, मोनोटाइप, कार्सोनिवा, एरियल, जो भी हमें चाहिए हम उस फॉन्ट का नाम लिख देंगे यहाँ पे इन केस ऑफ फेस एट्रीब्यूट। कॉमा डालने के बाद फिर बेटा हमारे पास जाएगा कलर। तो कलर जब मैंने मेंशन करना है COLOR, तो यहाँ पे मैंने मेंशन करते टाइम आई हैव 2 मेथड्स। वन मेथड इज़ टू स्पेसिफिकली राइट द नेम ऑफ दैट कलर, जो कॉमन स्टैंडर्ड नेम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इट इज़ रेड, तो उसको मैंने इन्वर्टेड कॉमास में डाल दिया रेड, तो वो टेक्स्ट को रेड फॉर्म में लिख देगा, ब्लू में लिख देगा, येलो, वट एवर, ब्लैक, वाइट, जो भी कलर चाहिए। बट वी कैन आल्सो यूज़ द स्काई कोड्स, जो स्पेसिफिक कोड्स होते हैं उनको लिखने के लिए हमारे पास मेथड जाएगा हैश के बाद बेटा हमारे पास 6 स्पेसिस होंगे जिनमें हम टेक्स्ट फिल कर सकते हैं, डाटा फिल कर सकते हैं। डैट कैन बी एनीथिंग फ्रॉम 0 to 9, हमारे पास 0 से लेके 9 तक, और A से लेके F तक कुछ भी फॉर्म में हो सकता है। लेट्स से टेक एग्जांपल, हम यहाँ पे कलर लिखेंगे COLOR इज इक्वल टू, उसके बाद हैश डालने के बाद 6, सपोज मैंने लिख दिया A12E11, ये 6 ब्लैंक स्पेसिस, मतलब 6 फिल करनी है हमने। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 फिल हो गई हैं, तो इसका कुछ अलग कलर बनेगा, कुछ भी कलर बन सकता है। वी कैन ट्राई हैश AF0053 लेट्स से। तो इस तरीके से हम अलग अलग कोड्स, कोई भी कलर कोड यूज़ करेंगे तो उसके स्पेसिफिक कलर्स बनेंगे। तो नाउ समझ आ गया आपको, फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट के अंदर हमारे पास एट्रीब्यूट्स जाएंगे, साइज़, फेस एंड कलर, ये उसके प्रॉपर्टी टैग हो गया, टैग के एट्रीब्यूट्स हो गए, उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ जाएंगी। यहाँ तक होपफुली इट इज़ क्लियर फॉर एवरीबडी। एंड नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ योर लिस्ट दैट वी विल कंटिन्यू विद आवर नेक्स्ट वीडियो। यहाँ तक की वीडियो आई होपफुली आप नेक्स्ट पार्ट जो होगा वीडियो हमारे सिलेबस का, दैट वी विल कंटिन्यू और कवर इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अप टिल देन गुड बाय। अगर कोई भी कन्फ्यूजन्स होती हैं, कुछ यू हैव एनी डाउट्स, प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन सो दैट वी कैन कवर इट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।